अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। आई नो कि सब लोग इसको पूरा प्रॉपरली एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड वी नो दैट इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस्टरडे हमने पढ़ा था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एंड इट इज गिवन बाय स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। और जो कल होमवर्क के दो हमने प्रॉब्लम्स दिए थे, सभी के आंसर्स उसके डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि क्या था कि वो जो वैल्यूज है उसको पुटअप करना था हमको इस इक्वेशन में, एंड सिंप्लीफाइड एज यूजुअल, दैट इज ब्रैकेट ओपन और मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। ओके, और वो भी बहुत ही सिंपल था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्लोप। एक छोटा सा वीडियो हम इसमें देख रहे हैं, हैव अ लुक। Look at a ski lift. You would see different lines here and all of them are tilted at various angles. Just look at ये the जो भी है ऐसे टिल्ट हुआ है एट वेरियस एंगल्स। figure. Don't think too much. Simply look and guess which line has the greatest slope and which one has the smallest. Clearly, this slope is the greatest. That's because it's tilted the most. And this one is the smallest as it has a very tiny tilt. A line like this will have a greater slope if it has a steep inclination. And a line like this one, which has a gradual inclination, will have a smaller slope. Understanding slopes is easy, and there is also a way in which a slope can be measured. The slope is simply a ratio. It is the ratio of rise over run. What is this ratio? Slope is nothing but the ratio of rise over run. Okay, what is this slope is nothing but rise over run. अभी हम इसको देखेंगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। What does this ratio actually mean? To understand this, let's draw the coordinate plane. It has the y and the x axis. How do we find the slope of this line? To find the slope, we just have to pick any 2 points on the line. Any 2. And from the bottom point, we need to reach the top one by rising and running. Yes. Now, rise over run. पहले rise over run. Okay. Rise and run. Think of a little man doing it. To reach from the bottom point ओ, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। देखिए अभी कैसे वो हमको बताता है व्हाट इज स्लोप। to the one on top, he rises and runs. Does the slope also have a sign? So before understanding how a slope can be measured, let's understand its sign. Yes, the sign of the slope depends on the sign of rise and run. A good way to understand that is by knowing that rising up is always positive and running to the right is also positive. Going down or running left will both be negative. Here, the rise as well as the run are positive. So the slope will be a ratio of two positive numbers. Positive over positive will give us पॉजिटिव और पॉजिटिव, we know that it is positive. a positive number. This line we can say has a positive slope. Now look at this line. We use the same procedure. We mark 2 random points on the line. And to go from the bottom point to the top one, we rise and run. Rise and run. Rise and run. If we look at the little man, he rises up and runs to the left. Rising up is positive and running to the left is negative. So the slope of this line will be positive over negative and this ratio will be negative. This line has a negative slope. What about the slope of this line which is parallel to the x-axis? You don't really need to mark 2 points to find its slope. It has no tilt. It means the rise will be 0. It has no tilt. ऐसा rise तो होगा ही नहीं उसमें, सिर्फ क्या है वहाँ पे? Run. So the slope will equal 0 over run, which is 0. 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। राइज कुछ भी नहीं हो रहा था तो राइज ओवर रन, ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? 0 अपॉन रन इज नथिंग बट 0। The slope of the x-axis is also 0.
What will be the slope of this line which is parallel to the y-axis? It's simple. You cannot run left or right after marking 2 points. The run is 0. So the slope will be rise over 0 and anything over 0 is undefined. Undefined, okay? यहाँ पर slope क्या रहेगा हमारा? Undefined. The slope of a line parallel to the y-axis is undefined. The slope of the line parallel to y-axis is undefined. Or as some say, is infinite. Now if you have understood the concept of sines, finding the slope is very easy. So let's move on to finding the slope of a line. How do we find the slope of this line? We have Now, to find the slope of a line having 2 points, which we have the simple formula. वो अब हम पूरा प्रॉपरली देख लेंगे कि कैसे कैसे हमको 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है. बट बिफोर दैट, जो मैंने जितना भी अभी आपको मैं लिख के दे रही हूँ, इसको हमको क्या करना है, डेली हमको इसको रीड आउट करना है. वेट ओके. अब देखिए कैसे have been given the coordinates. नाउ अब देखते हैं हम लोग इसमें हमको क्या करना है. ये जो भी हमने आपको अभी लिख के हम दे रहे हैं, उसमें हमको जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आपको ये डेली पढ़ने हैं. मेक अ हैबिट. और अगर ये हमको लर्न है तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप. स्लोप ऑफ अ लाइन में पहला है पॉइंट्स टू रिमेंबर. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल है. ओके. अब देखते हैं हम लोग इसमें हमको और क्या क्या पढ़ना है. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये हमारा एग्जैक्टली इंक्लिनेशन का एक स्मॉलेस्ट एंगल है. यहाँ पे हमको स्लोप, अगर हमको एंगल गिवन है देन स्लोप कैन बी फाइंड आउट एट एज m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा. एंड प्लीज रिमेंबर ये बहुत सिंपल है. नॉट ओनली सिंपल, इट इज सिंपलेस्ट. और जैसे जैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले, हमको ऑटोमेटिक वैसे क्लियर होते जाएंगे. एंड इट इज़ अगेन सिंपल. इफ एंगल इज देयर then slope can be find out by using m is equal to slope is equal to tan theta. Go for the second. Again this is the formula for tan theta is nothing but mod. Mod का मतलब क्या हो रहा है, वैसे भी एंगल ये जो रहता है ये क्या रहेंगे हमारे पॉजिटिव. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये हमको प्रॉपरली याद रखना है. द नेक्स्ट इज टू लाइन्स आर पैरेलल. दो लाइन्स पैरेलल कब रहेंगी, इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, दैट इज m1 इक्वल टू m2. एंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ये हमको बहुत प्रॉपरली याद रखना है. इसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे अगर 2 पॉइंट्स है हमारे पास में, तो हमको ये फॉर्मूला पूरा प्रॉपरली याद रखना है. इट इज़ नथिंग बट लाइक दिस. y इज इट लुकिंग लाइक y? यस. y2 माइनस y1. ओके, इज दैट क्लियर? हाँ. डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. अगेन आई एम डूइंग द सेम. y2 माइनस ओके y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. इज दैट क्लियर? इसको हम प्रॉपरली याद रखेंगे. दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट. इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 देन वी कैन से दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. इट मीन्स दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. अगर एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमको याद रखना है तो ये फॉर्मूला हमारा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. एंड रिमेंबर 1 प्लस m1 m2 डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएंगे. एंड द नेक्स्ट इज टू फाइंड x इंटरसेप्ट y 0 एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट x इज ऑलवेज 0. ये आपको हमको डेली पढ़ना है. सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपने फॉर्मूला बुक में इसको नोट डाउन भी करना है. और डेली पढ़ने से हमको फॉर्मूले ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे. और जैसे जैसे हमको ये लर्न रहेंगे ऑन टंग, वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर्स. ओके. नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 बहुत सिंपल है. सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट है. इसमें देखिए हमको कैसे सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल.
फाइंड द स्लोप, हमको स्लोप निकालना है। अब स्लोप के फॉर्मूला हमको याद है, स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। इफ 2 पॉइंट्स आर देयर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी हमको पूरा प्रॉपरली याद रखना है। ओके, नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स। हमको यहाँ पे स्लोप निकालना है और हमको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन। ओके, नाउ गो फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट। 2 पॉइंट्स हमको यहाँ गिवन है, 2 माइनस 1 एंड द अनदर पॉइंट इज नथिंग बट 4,3। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज अवर ए पॉइंट and this is our B point. Okay, now we know that slope of AB is given by, we can write like this, slope of line AB is given by, first we note down the formula. क्या है फॉर्मूला हमारा, y2 minus y1. Okay, first I am writing the formula, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. And after keeping the values we can easily find out the answer. Okay, अब देखिए हमको क्या करना है, इसके नीचे लिखेंगे हम x1, y1 और ये हमारा x2, y2. Now put the values of x1, y1, x2, y2, we get the required answer. तो क्या आ रहा है मेरा, 3 minus of -1, minus is for the formula and -1 is for the example. Denominator will be, क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर, 4 minus 2 and the required answer is 4/2 is nothing but 2. In this way we can easily find out the slope if 2 points are given. Okay, is that clear? अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सेम प्रॉब्लम से हमको उसमें शायद 3-4 प्रॉब्लम से जो भी है। सेकेंड इज -2,3 and the next is 5,7. Again it's a request, just pause the video and try to simplify by yourself. अगर ये हमको बहुत इजीली आ गया है तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक थर्ड और फोर्थ तो आ ही जाएंगे। ओके, अब अगेन स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइक दिस, इसके नीचे हम लिखेंगे x1 y1, दिस इज अवर x2 y2, इसको हम लोग लिख सकते हैं वही ए बी लाइक दिस। देन वी हैव स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इंस्टेड ऑफ ए बी आप सी डी भी लिख सकते हैं, एज यू विश, कोई भी लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं, सी डी लिखना है तो सी डी भी लिखिए, जैसे भी। अब यहाँ पर तो ठीक है, हमको 3-4 क्वेश्चंस थे, अब एक ही रहा तो हम डायरेक्ट ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन सी डी, अगेन राइटिंग द फॉर्मूला दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, 7 माइनस ऑफ 3 अपॉन क्या आ रहा है मेरा, 5 माइनस ऑफ -2 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज नथिंग बट 4/7। इज दैट क्लियर? आ रहा है ध्यान में? बहुत सिंपल है एंड आई थिंक थर्ड और फोर्थ तो आपने खुद ही करना चाहिए। थर्ड, अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स, सही चल रहे हैं, बिल्कुल राइट चल रहे हैं। नाउ अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स, विच पॉइंट्स आर देयर, 2 3 and 2 minus 1, 2 3 and 2 minus 1। अब देखिए यहाँ पर राइट है क्वेश्चन, हाँ, x1 and x2 is given to be 2, therefore the slope of EF not defined। अब देख लेते हैं हम लोग कैसे, ये E है, ये F है। ओके, सो कैन आई राइट लाइक दिस, स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू, अगेन वही हम फॉर्मूला लिख लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कीपिंग द वैल्यूज। इसके नीचे लिखेंगे हम x1, y1 एंड हियर वी कैन राइट x2, y2। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या आ रहा है हमारा, -1 -3 divided by 2 minus 2, it is nothing but -4 upon 0 is undefined. Is that clear? अगर अपॉन में 0 है तो वो हमारा क्या रहेगा, completely undefined. Then we can say that here it is undefined। अगर बोला तो ये किसको पैरेलल रहेगा, y एक्सिस को, क्योंकि अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 आता है, बट अगर ये y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप है इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। अभी हमने
चेक भी किया था, इसमें देखा भी था। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। इफ यू विश टू ड्रॉ दिस देन यू कैन ड्रॉ, बट इट इज नॉट कंपल्शन टू ड्रॉ इट। ये मैंने जस्ट ड्रॉ किया है समझने के हिसाब से, नहीं भी किया तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ओ आई एम सॉरी। स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे माननी एकदम प्यारी सी। हाँ, तो अब देखिए ये आ रहा है हमारा, कैसे आ रहा है। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस को पहले रहेंगे क्योंकि इसका स्लोप अनडिफाइन आ रहा है। सपोज दिस इज ई एंड एफ 2 3, और यहाँ लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1। इज दैट क्लियर? आ रहा है ध्यान में? ये हमारा पॉइंट्स है, पॉइंट्स। ओके, so we can say that it is undefined. Got it? Now go for the next example number 4th. Again it is simple. तो ये पैरेलल था y axis को। ओके, अब देखिए if 2 points are given then slope can be find out by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। 4th एग्जाम्पल है, सपोज जी और एच ले रहे। देखिए अगर आपने सेम भी लिए तो कोई फर्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही साथ में सब तो हमने डिफरेंट लिए। जी है सपोज हमारा 7 1, और एच है -3 1। आप देखिए यहाँ पे ये y सेम है तो ये किसको पहले रहेंगे? आप x एक्सिस को। देखिए इसका स्लोप 100% 0 आता है। पहले हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x1, y1, हियर वी कैन राइट x2, y2। What is the formula to find the slope? Now slope of GH can be given as y2 minus y1 upon x2 minus x1, keeping the values। ये कैसे हमारा run upon rise। ये आ रहा है हमारा -3 -7। एग्जैक्टली तो 0 अपॉन एनी नंबर वैसे भी 0 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे y1 एंड y2 आर सेम। नाउ इफ यू विश टू ड्रॉ दिस देन ड्रॉ, इट्स नॉट कंपल्शन। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, डॉटेड लाइन निकाल लूँ। ठीक, आप देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या था? पॉइंट्स हम लोग पहले लिख सकते हैं। -3 1 कहाँ पर आएगा? ये इधर -3 1। ये हो गया हमारा -3 1। सपोज एच पॉइंट 7 1 कहाँ आएगा? ये 7 और ये 1। जी पॉइंट 7, 1, and it is parallel to x axis because y1 equal to y2। ओके, टेढ़ी आ रही है क्या लाइन? ठीक है, उसको थोड़ी सीधी कर लेना। चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। If the x and y intercept of line L are 2 and 3 respectively, find the slope of line. If x intercept कितना गिवन है हमको? 2। If x intercept is 2, तो एग्जैक्टली वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा? x इंटरसेप्ट 2 है तो y क्या है वहां पे? 0, और y इंटरसेप्ट कितना गिवन है? 3। अगर y इंटरसेप्ट गिवन है इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? x इज 0।
ओके, ये हमने अभी नोट डाउन किया था। एक्स इंटरसेप्ट है तो हमारा वाई 0 है, और वाई इंटरसेप्ट है तो हमारा एक्स 0 है। ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए, एंड इफ वी नो द पॉइंट्स वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप। नाउ एक पॉइंट है मेरा 2 0, दूसरा है 0 3, इसके नीचे लिखेंगे हम x1 y1, यहाँ क्या लिखेंगे हम x2 y2। अगेन राइटिंग द फॉर्मूला फॉर स्लोप, वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला y2 माइनस y1। बिल्कुल ऐसा प्रॉपरली कीजिए, y इज इट लुकिंग y, ओके, 2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे x2 माइनस x1। आफ्टर कीपिंग द वैल्यूज वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर वेरी इजीली, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2, एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 3 बाय माइनस 2 और माइनस 3 बाय 2, वन एंड द सेम। अब यहाँ पर पॉइंट्स गिवन नहीं थे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन थे, तो पहले हमने उसके प्रॉपरली पॉइंट्स लिख लिए, और उसके बाद में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ 2 पॉइंट्स आर देयर वी हैव द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ गो फॉर द एग्जांपल नंबर 3। देखिए उसमें क्या आ रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड, अगेन वी हैव टू फाइंड द slope of the line, find the slope of the line whose inclination is 30 degree, whose inclination is 30 degree। इंक्लिनेशन 30 है, वही स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे 30 गिवन है, and we know that if angle of inclination is there, slope is given by tan theta। we know that if angle of inclination is given, यानी थीटा हमको 30 डिग्री गिवन है, m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट tan थीटा, एंड tan थीटा यानी आएंगे मेरा tan 30 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, बिकॉज tan इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। ओके, ये हमको पता है, tan थीटा इज नथिंग बट क्या रहता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिर्फ हमको दो ही वैल्यूज पूरी प्रॉपर लर्न रहनी चाहिए, साइन और कॉस, रिमेनिंग तो हमको ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अब हमको निकालना है tan 30। एग्जैक्टली आपको आगे बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये थोड़ा सा एक हाथ दो प्रॉब्लम्स है जिसमें हमको ये यूज में आ रहा है। It is nothing but sin 30 divided by cos 30, and we know that sin 30 is 1/2। Is that clear? और cos 30 की वैल्यू क्या रहती है बताइए, एनीबडी याद है या भूल गए? याद है बराबर, क्या रहता है cos 30 की वैल्यू। और अब हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल। Now this cancel and the value of tan 30 is 1/√3। इतना डिटेल लिखना नहीं है, अगर आपको लर्न है तो डायरेक्टली tan 30 1/√3 लिखिए। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। क्या था, लिखते हैं हम क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line whose inclination is 45, again as the previous, whose inclination is 45। ये भी वैसे ही सिंपल है जैसा हमने पहले देखा था, पहले इसमें हमने वही यूज किया था हमारा tan थीटा। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही यूज करना पड़ेगा हमको tan थीटा। Now again here angle of inclination is given and a theta 45 given है। Now we know that again slope is equal to m is equal to tan theta is equal to आ रहा है मेरा tan 45, and tan 45 is nothing but 1। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग साइड में लिख लेते हैं।
सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्टली फाइनल आंसर 1 आ गया। जस्ट फॉर द नॉलेज हम लोग ये इसको देख रहे हैं। अगेन tan 45 कैन बी रिटर्न एज sin 45 बाय cos 45, और इसके बाद में आफ्टर कीपिंग द वैल्यूज 1/√2 अपॉन 1/√2 द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। बिल्कुल भी ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 1 लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1/√3 भी लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ गो फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी अगेन सिंपल है। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, आज जो हम फॉर्मूलाज की समरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डेली पढ़ना है। उसमें हमको ऐड भी क्या करना है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एज वेल एज टूडेज फॉर्मूला, दैट इज इफ द 2 points are there then use y2 minus y1 upon x2 minus x1 like this. If angle is there then slope is equal to m equal to tan theta. For y-intercept x is 0 and for x-intercept y is 0. So if two lines are parallel then we can say that the slopes are equal, that is m1 equal to m2. And if two lines are perpendicular then we have m1 into m2 equal to -1. That is the slope of product of slope is -1. Now example number 5. A line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis. Find the slope. Okay, a line makes intercepts. A line makes intercepts 3 and 3 on the coordinate axis. इसका मतलब x intercept is 3 and y intercept is also 3. Then we can write here again, pause the video and try to simplify by yourself, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसके पहले हमने ऐसे सॉल्व किया है। x इंटरसेप्ट इज 3, बिल्कुल राइट है। फिर द लाइन इंटरसेक्ट्स, वेट, आवाज आ रही है प्रॉपर, गुड। हाँ, इफ द एक्स इंटरसेप्ट इज 3 then the line intersect x-axis at 3,0. In the same way the y-intercept is 3. Again the line intersect at the point 0. y-intercept given है तो x is 0 और x-intercept is there, then y is 0. Now which points are there, हमको slope ही निकालना है ना। yes, we have to find out the slope 3 0 and 0 3. Suppose this is the 2 points. Again writing the same, x1 y1 x2 y2. Is that clear? And we know that slope for 2 points is given by writing the formula y2 minus y1 upon x2 minus x. Put the value, get the answer. 3 minus 0 divided by 0 minus 3 and the required answer is -1. यहाँ हमको क्या निकालना है, स्लोप। आपके बुक में ये करेक्शन कर लेना, बुक में लिखा है फाइंड द इंक्लिनेशन, पर हमको वो उस टाइप के लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं है। हमको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वैसे भी नहीं है, फाउंडेशन में भी नहीं है, बट इसमें जो थोड़ा बहुत आया है उसको ध्यान में रखिए। बट रिमेंबर, in this problem the question is not to find out the inclination, only the question is find the slope. यहाँ पर चाहे तो आप लिख लीजिए find the slope, that is the question, not inclination. बस इतना करेक्शन आपको करना पड़ेगा। बुक में गिवन है फाइंड द इंक्लिनेशन, बट हमको सिर्फ निकालना है फाइंड द स्लोप, एंड इन दिस वे वी कैन easily find out the slope. Go for the example number 6. Without using Pythagoras theorem, मतलब Pythagoras theorem का यूज हमको करना ही नहीं है, and we know that Pythagoras theorem is given by, हमको सभी को पता है, I think yesterday we use it. Yeah, hypotenuse square is equal to one side square plus other side square, like this.
Go for the example number 6. Without using Pythagoras theorem, show that the points A is 4, 4, B is 3, 5, and C is -1, -1 are the vertices of right angle triangle. Are the vertices of right angle triangle. विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको शो करना है कि ये जो तीनों वर्टाइसेस है ये किसके है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है. तो अभी हमको करना क्या है, एकदम सिंपल. पहले हम सबके स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी बी सी ए सी, और बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए. और अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमारा परफेक्टली -1 आ रहा है, देन वी कैन से दैट these three vertices makes a right angle triangle. पहले हम निकाल लेंगे. एक पॉइंट में ले रही हूं ए बी निकाल रही हूं मैं. कौन सा स्लोप निकाल रही हूं, स्लोप फॉर ए बी. ओके, ए बी का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना है, अगेन 2 पॉइंट्स आर देयर एंड वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके, तो a कितना है बताइए बेटा, 4 4. b कितना है हमारा, 3 5. राइट ओवर हियर x1 y1 x2 y2. इज दैट क्लियर. फिर आ रहा है हमारा नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू writing the formula. Which formula is there? That is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Writing the same formula. क्या है फॉर्मूला, हम लोग पहले लिख रहे हैं, दिख रहा है सभी को प्रॉपर. y2 minus y1 upon x2 minus x1 कितना आ रहा है मेरा, 5 minus 4 divided by 3 minus 4. -1 आ रहा है स्लोप ऑफ ए बी. अब हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अभी हम लोग फाइंड आउट ही कर रहे हैं. वेट वेट वेट, सभी को आवाज आ रही है, क्लियर, गुड. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी. तो पहले बी सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं. बी के पॉइंट है 3 5 और सी कितना है हमारा, -1 -1. अगेन राइटिंग द सेम, x1 y1 x2 y2. Now find out slope of BC. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो पूरा लर्न हो गया ये फॉर्मूला सभी को. कितना आ रहा है यहाँ पर, -1 -5 अपॉन -1 -3 -6 अपॉन -4. इट इज नथिंग बट 3/2. अब इसका प्रोडक्ट -1 थोड़ी आ रहा है, अभी हमको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ ए सी. स्लोप ऑफ ए सी अगेन फर्स्ट आई एम राइटिंग द पॉइंट्स ए सी. ए है हमारा 4 4, इसके नीचे लिखेंगे हम अगेन x1 y1 x2 y2. Now slope of AC is equal to, writing the formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. -1 -4 -1 -4 यानी कितना आ रहा है, -5 अपॉन -5. इट इज नथिंग बट 1.
and here product of slope of AB and AC is -1. Therefore we can write, therefore product of slope of AB and the product of slope of with product of slope of AC is nothing but -1, and therefore by without using calculator we can say that these are the vertices of right angle triangle. Is that clear? आ रहा है ध्यान में सभी को? Therefore we can write side AB is perpendicular to side AC. Therefore what we can write, side AB is perpendicular to side AC. बिल्कुल राइट है. Therefore triangle ABC is a right angle triangle. और क्या लिखेंगे इसमें? इतना ही तो क्वेश्चन था. हाँ, and therefore the given points are the vertices of right angle triangle. AB perpendicular to AC. AB perpendicular to AC. Is that clear? And therefore we can say that it is therefore we can say that these are the vertices of right angle triangle. Finally हम क्या लिखेंगे? Therefore these are the vertices of right angle triangle. Okay? Triangle ABC is right angle triangle at A. Understood? आ रहा है ध्यान में? Everyone? सभी को? गुड. इज दैट क्लियर? और अब यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, और इसके जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, एंड एवरीबॉडी प्लीज डू द होमवर्क प्रॉपरली. तो आज हमने क्या देखा था? व्हाट इज स्लोप. इज दैट क्लियर? सेकेंड हमने पढ़ा था उसके जितने भी पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड डेली ट्राई टू रिकॉल इट बाय यूजिंग formula how to find the slope y2 minus y1 upon x2 minus x1 like this. डेली इसको पढ़ना है, एंड वो जो समरी हमने लिखी है उसको अपने बुक में नोट डाउन कीजिए, एंड डेली रीड इट, सो दैट क्या होगा कि हमको वो लर्न रहेंगे फॉर्मूला. इस चैप्टर में फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा है तो हमको इसको प्रॉपरली लर्न करना है. पहला था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेकेंड था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फिर आज हमने देखा था स्लोप. इससे रिलेटेड जितना भी हमारे बुक में नोट डाउन किया है उसको डेली पढ़िए, क्योंकि हमको बिल्कुल कैसे चलना है? ईगल की तरह. ओके, सो नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड डू योर वर्क प्रॉपरली. ओके, बाय.